Hello students, myself Abhinav Suman. From today itself, as educator, I am going to deal important topics related with science and social science for a school education. This is my first video on YouTube channel, so basically I need your support. Please like, share and subscribe my educational channel for most relevant and informative content and much more for you all. Thanks. Let's start. Today I am going to deal chapter heredity of class 10th. This is the partial portion of chapter heredity and evolution, and it contains approximately 6 to 7 marks in biology section in upcoming term 2 examination for board students. You can see here the topics of part 1 video: heredity as introductions, then importance of heredity, next variation, that is the introduction part, and then importance of variation, and lastly you have to solve an assignment question after dealing with this video. Before dealing term heredity, I am going to discuss the basics of reproduction. There are two forms of reproductions in this universe. The first one is the asexual mode of reproduction and the second one is the sexual mode of reproduction. In asexual reproduction, the involvement of the single parents, it means कि यहाँ पे single parents का involvement होगा and it can't be distinguished as the male or female. Next, the offspring is produced by the asexual mode of reproduction is exactly carbon copy of their parents. So asexual mode के थ्रू कोई भी offspring का अगर प्रोडक्शन होता है, that's very much similar or exactly similar to their parents, and those organisms which looks exactly similar to their parents even on the basis of the genetic level, that's offspring is termed as the clone. So you can see here in this graphics video, all the offsprings are produced by the asexual reproductions are exactly looking similar as a clone. Now I am going to deal with the sexual reproductions. So in sexual reproductions, two parents are getting involved. The one is male and the another one is female. So यहाँ पे आपको दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है. The offspring is produced by the sexual mode of reproduction. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, दैट इज़ नॉट सिमिलर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वो आपको डिफरेंट लगेंगे, चाहे वो विजिबिलिटी में हो जाए, इवन ऑन द जेनेटिक लेवल they are different from each other. Even the father or mother is exactly not same as the child. So offsprings are not genetically similar to any of their parents. Even offspring is not looks exactly like the mother or the father. Here an offspring is produced from their parents with unique genetic composition that's coming from their father and mother. Now I am going to deal the term heredity. Heredity refers to the passing of genetic factors from their parents to the offsprings or from one generation to the next generation. हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी कैरेक्टर और ट्रेड्स जो होते हैं वो पास करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, or you can say that one generation to the next generation. Here in a diagrams there are the one male kid and the another one is the female kid. ये जो दोनों बच्चे हैं इनके अंदर कोई भी कैरेक्टर्स, आइदर आई कलर, यू कैन हेयर कलर, हेयर और स्किन कलर, एनीथिंग्स दैट इज पासिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स. सो कोई भी कैरेक्टर्स और ट्रेट जो पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के थ्रू, दैट टर्म इज नोन एज द हेरिडिटी. हेरिडिटी को हम लोग बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं.
बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इस वजह से बिकॉज दैट्स अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इनहेरिटेंस मीन्स इट्स द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर from the one generation to the next generations. And then offspring acquires characters from their parents. जो offsprings होते हैं वो सारे के सारे characters ऑलमोस्ट वो अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं. इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर अबाउट द इनहेरिटेड एंड द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. कुछ कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ टाइम्स के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ उन्हें एज ए रिवार्ड फ्रॉम पेरेंट्स मिलता है. तो वैसे कैरेक्टर्स जो कि एज ए उन्हें रिवार्ड मिलता है दैट इज़ द इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड दोज कैरेक्टर्स that acquire during their lifetime, that is the acquired character we are going to deal. And next, transfer of characters. अब हम सोच पाएंगे यहाँ पे कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में किस मेथड और किस मोड के थ्रू वो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स पास होते हैं. तो आप यहाँ पे देख पाएंगे transfer of character from the one generations to the next due to the genetic material. There the genetic material, that is the DNA or RNA, deoxyribonucleic acids or ribonucleic acids. In Homo sapiens, in humans, the genetic material is the DNA, and in some viruses and lower organisms, there the genetic material, that is the RNA. In this graphics, we can see the double helical structure of DNA with two strands that contains the genetic information from their parents to their offspring. DNA acts as a genetic material for humans and even higher organisms. So let's take an example to understand the transfer of character from the parents to their offspring, or you can say that the one generation to the next generation. So a child's get their hair color from their mothers. You can see the hair colors exactly same as the mother, and you can here see the exactly the eye color is same as their father. And ear lobes are of two types. दो तरह के होते हैं. The first one is the attached ear lobe and the free ear lobes. So ear types is also same as the father. सो बेसिकली हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जो चाइल्ड है वो अपने मदर के से एंड फादर से क्या क्या ट्रांसमिट किया है और क्या उसमें पास हुआ है. सो हेयर कलर्स फ्रॉम द मदर एंड आइज कलर एंड आल्सो द ईयर लोब्स पैटर्न from the father. After dealing with heredity, now it's time to deal with the variation term. So in genetics, variations is a term as you can say that every individuals is looking different from each other, and that is due to the variation. सारे लोग इस यूनिवर्स में जो भी हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं. So that is due to the variation. So variation refers to an individual that possesses characteristics different from the others of the same kind. So variation is very important to differentiate from one to another. And all progeny of the asexual reproduction have the same genetic makeup. Even हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सिमिलर होता है. वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम विजुअल होते हैं. उनका यू कांट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द विजुअल अपीयरेंस. नेक्स्ट टर्म, that is the progeny of animals reproduce sexually have the variations. वैसे ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल मोड के थ्रू रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा. एंड दैट वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशंस. आई एम गोइंग टू डील इट लेटर. नाउ ए क्वेश्चन arises from the variation part. Why variation is important? So
Variation is very important raw material for evolution and selection. So if we take an example of the human evolutions, सो जिस समय पे ह्यूमन का ऑरिजिन हुआ था इस अर्थ पे, तो वो उनका जो अपीयरेंस था, जो वो दिखते थे, वो डिफरेंट थे आज के ह्यूमंस बीइंग के कंपैरिजन में. सो वो विजिबिलिटी और अपीयरेंस जो चेंजेस हुए, वो स्लो वेरिएशन होते होते आपका changes हुए. And you can see on the right hand side here from the 4 different countries, and they are all humans but they looks different from each other. That is due to the variation. Even अगर अभी के समय पे अगर हम एग्जांपल लें, दैट इज़ द कोरोना वायरस, तो हम सुन रहे हैं कि हमेशा आफ्टर एवरी 6 months और 8 months कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन्स आ रहे हैं. दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द वेरिएशन, एंड दैट वेरिएशंस causes new strains, and that is the evolutionary part of that coronavirus. So new variations आएंगे तो न्यू वैक्सीन्स बनेगा. इट मीन्स द कोरोना का जब भी न्यू वेरिएंट आएगा, आपको एक नया वैक्सीन्स इस्तेमाल करना होगा उसको रोकने के लिए. इवन वेरिएशंस आल्सो हेल्प्स इन एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस. वेरिएशन जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को रिकॉग्नाइज करता है एंड आपको अडेप्ट करता है कि आप इस इन्वायरमेंटल चेंज जो हो रहा है, जो चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, आप उसमें अडेप्ट कर सकें. सो दिस इज़ द बेनिफिशियल फॉर अस. इवन वेरिएशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड्स इंडिविजुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In similar terms, you are different from me, everyone is different from each other. So सारे persons, सारे organisms का एक अपना individuality है. सब लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं. और ऐसा क्यों हो पा रहा है? This is only due to the variation in the genetic level. अगर variation नहीं होता तो we are looking similar like this. Even variation is very important for formation of new characters among the species. किसी भी स्पेसीज के अंदर एक नए नए कैरेक्टर का फॉर्मेशंस में भी वेरिएशन का रोल होता है. आपके सामने यहाँ पे वन इज द वाइट मॉथ. मॉथ इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट एंड हेयर इज द ब्लैक मॉथ. So during industrialization, there are only one types of moth is present, that is the white type. And during industrializations, there is the smoke and pollution. So due to pollutions, जो pollutions के through जो trees थे उनके bark पे वो smoke और dust सारे के सारे जा कर के उसके bark को black में convert कर दिया. एंड जो प्रेडेटर थे, जो शिकारी थे इन मॉथ्स के, वो इजीली को रिकॉग्नाइज करने लगे वाइट मॉथ्स को ऑन द ब्लैक बार्क. आफ्टर दैट न्यू कैरेक्टर्स, उस मॉथ में न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है. क्योंकि बार्क ब्लैक था तो इनका जो वाइट कलर का जो विंग्स है दैट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक. सो नाउ प्रेडेटर इज नॉट इजीली रिकॉग्नाइज्ड the black moths. So this is also a example of the formation of the new characters among the species. Now we are going to compare the variation level in the asexual reproduction and the sexual reproductions. So asexual reproductions में जो वेरिएशन होगा वो बहुत ही कम होगा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो द फर्स्ट टर्म, ऑर्गेनिजम्स who reproduce through the asexual means show a little or no variation at all. इसमें जो वेरिएशन होगा वो बहुत ही कम या फिर वेरिएशन नहीं होगा. और ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल पेरेंट्स. सो अगर कोई भी रिप्रोडक्शन में अगर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है तो बिल्कुल
वो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा होगा, तो वहाँ पे कोई भी वेरिएशन हमें देखने को ऑलमोस्ट नहीं मिलता है, और दैट टर्म्स एज द क्लोन. सो देयर इज नो वेरिएशन और लिटिल वेरिएशन इन द asexual reproductions, and then the slight variations are as a result of the small. अब जो हमने देखा कि या तो नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, सो हम समझ सकते हैं कि नहीं होता है बिकॉज क्योंकि वो ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है. यहाँ पे अब हम देख पाएंगे कि वो थोड़ा बहुत जो लिटिल वेरिएशन हो रहा था वो क्यों हो रहा था. तो देयर द स्लाइट वेरिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ द स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द डीएनए कोपिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि जो डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए कोपिंग बोथ आर द सेम थिंग, तो जिस समय डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था वहाँ पे कुछ एरर हो जाए, वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आ जाए, तो वहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स में. बट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज. इट मीन्स देयर आर द मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन. यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है. In other words, the sexual reproduction results in the offspring that are the genetically unique. सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शंस जो होता है, सेक्सुअल मोड के थ्रू जो भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, जिस ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है वो जेनेटिकली यूनिक होते हैं. इट मीन्स बिकॉज देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू पेरेंट्स, और जो दो पेरेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो एक ऐसे ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक हाइब्रिड होता है किसी दो डिफरेंट कपल्स का. सो दिस इज बिकॉज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द टू पेरेंट्स ऑफ द डिफरेंट सेक्स, दैट इज द मेल एंड द फीमेल. एंड लास्टली दे डिफर फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स एंड आल्सो फ्रॉम द ईच अदर. इट मीन्स जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपने पेरेंट्स से भी डिफर होते हैं और उनके जो सिबलिंग्स होते हैं उनसे भी वो डिफर करते हैं. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवरी ऑफ स्प्रिंग्स और एवरी पर्सन इज जेनेटिकली इक्वल. दे आर नॉट सिमिलर ऑन द होल यूनिवर्स. सो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करने वाले ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन बहुत ही कम होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले में वेरिएशन ज़्यादा होगा. इट मीन्स इन्फिनाइट टर्म्स पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जहाँ पे डीएनए का सीक्वेंसिंग होगा वो चेंज हो सकता है. अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में है, और एक एग्जाम्पल बेस्ट सुटेबल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है दैट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड. सो हियर वी कैन सी दैट कि एक ही ऑर्गेनिजम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिप्रोडक्शन में, एंड हर एक लेवल पे आपको कहीं ना कहीं वेरिएशंस देखने को मिल रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पिंक हो चुका है एंड हियर इज़ द ग्रीन. सो दिस डिफरेंट कलर्स जो है वो दिखा रहा है कि उसमें कुछ वेरिएशन आए हैं. इट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में कुछ वेरिएशन आया है. अगेन यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ का जो नेक्स्ट जनरेशन है देर इज़ आल्सो डिफरेंट. दिस इज द सेम बिकॉज फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, and this is the different. You can see here the color is the different. So this is the difference that is due to the variation. Even you can see here this is the green and green because of the same parents. So even you can see that the here is the color difference. So variation is also here. यहाँ भी आप वेरिएशन हुआ है. तो आप देख पाएंगे कि हर एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है. आइदर वो सेक्सुअल होगा और एसेक्सुअल होगा. बट अगर हम डिग्री की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन का जो डिग्री होगा वो बहुत ही कम होगा और सेक्सुअल वेरिएशन में जो डिग्री होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा. एंड हेयर एन असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. इसको आप सोल्व कीजिए. Question is, do organisms have equal chances of survival due to variation? वेरिएशन की वजह से क्या
सभी ऑर्गेनिज्म्स में इक्वल चांसेस हो सकते हैं सर्वाइवल के या नहीं? सो आपको आंसर यस और नो में देना है एंड एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। सो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और कोशिश कीजिए समझने की एंड देन इस क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करें। थैंक यू फॉर टाइम। हैव ए